उसको तो मारना चाहिए। हाँ। मेरा तो दिल करता है उसको मेरे सामने आवे ना तो मैं उसको आप ही कत्ल कर दूं। वजीर आला से पैगाम है, जैसी सजा मेरे बेटे को दी है उस दोनों को मुलजिमों को इस तो भी कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ अच्छा। ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੁੱਚੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। जला दी। हाँ, ऐसा सोच सकती है बच्चे अपने को? वो हकीकी बच्चे को, सगे बेटे को मार सकती है? वो ऐसी माँ काफर ही होती है। अस्सलाम नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त रायबंद में मौजूद हूँ। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहा हूँ कि आपके कलेजे भी हलक को आ जाएंगे, आपके दिल दहल जाएंगे। आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे कि माँ ने या बाप ने बच्चों समेत गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर ली। वो तो बात समझ में आती है। आज जो आपके सामने एक नई नौयत की स्टोरी लेके आ रहे हैं कि सगी ही माँ ने अपने बेटे को अगवा करवाया, अगवा करवाने के बाद उसका कत्ल करवाया और कत्ल करवाने के बाद उसको जला दिया। ऐसी नौबत पेश क्यों आई? ऐसा मामला क्या था? क्योंकि माँ के ऊपर तो किसी का शक जा ही नहीं सकता। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, ये सारी आपके सामने मालूमात रखते हैं। बच्चे का वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि ये सारा वाकया पेश कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? नवीद अली। ਨਵੀਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਸੀ हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਸੀ। जी सकी माँ थी। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਤਫਸੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਓ। वो मुझे तो नहीं थी पता ते मैं तो काम पर गया था ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਆ ਜਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਲਾਣ ਲੂਣ ਕਰਾਏ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਕहीं ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 1 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਖਲਾਏ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ, ਨਾ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲੂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ? ਲੱਭ ਅੱਛਾ। ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ? वो उसके आशिक ने, वो किसी के साथ ना अटैच थी। आपकी बीवी? जी। तो कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? 4 साल हुए थे तो ना मुझे नहीं थी पता इस बात का। अच्छा, आपकी शादी को 4 साल हुए हैं। जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा था। अच्छा, एक ही बेटा। तो क्या आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, रेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। ये जो उसके साथ, किसी लड़के के साथ जो आपकी बीवी का मुआशका चला, कितनी देर बाद? वो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं था। हाँ, पता ही नहीं चलिया हैगा। वो तो ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, मोबाइल ਮੂਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ना। नहीं, वो बच्चे को मारने की नौबत पेश क्यों आई? वो पता नहीं उसका क्या प्लान था, भी उसके साथ शादी करना चाह रही थी। पहले बच्चे को मारते हैं फिर मैनू मारनगे, फिर उसके बाद ही शादी करेंगे। नहीं, तो शादी करनी भी हो तो बच्चा आपके पास रह सकता था, उसके साथ भी जा सकता था। कोई माँ ऐसा सोच सकती है बच्चे अपने को, वो हकीकी बच्चे को, सगे बेटे को मार सकती है? वो ऐसी माँ काफर ही होती है। हाँ। हाँ। तो फिर पुलिस को शक जब आपकी बीवी पे गया तो आपने पुलिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई एतराज ना किया कि मेरी बीवी नू लै चले हो, मेरा पुत्र ही गुम होया तो मेरी बुढ़ी लै चले हो? पुलिस को पूछा नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज था, मैंने तो वो कातल ही पकड़ने थे ना। पकड़ने थे। हाँ। हाँ। वो आपसे भी पूछा पुलिस ने?
हाँ हमें भी पूछा। तो पुलिस ने वो मैसेज वगैरह ऐसी क्या चीज़ देखी कि पता चल गया कि बच्चे का हमें पता चल सकता है, बच्चा ढूंढ सकते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। नंबर ट्रेस की है? ਹਾਂ अच्छा, उस लड़के का। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕੂਡ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ, हाँ, ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ वो ਹੈਗੇ, बंदा पकड़ लिया? ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा, वो जो जिसने ये सारा किया था, ਹਾਂਜੀ तो वो कहाँ का रहने वाला था? ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਚਰ ਪੁੱਚਰ हम्म। ਉਧਰ ਦਾ। तो पुलिस ने उससे जब पूछा कि ये सारा वाकया क्यों किया, किस वजह से किया, और नौबत क्यों पेश आई बच्चे को मारने की, तो उस लड़के ने क्या बताया? उसने बताया भी इसकी माँ भी मेरे साथ मिली। अच्छा, माँ मिली थी? तो माँ से भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पूछा माँ से कि ये क्यों किया, तो माँ ने क्या बताया? माँ ने मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। पुलिस वालों से तो पूछा होगा ना आपसे? नहीं आने। अच्छा, ये नहीं पूछा, असल वजह सामने नहीं आई हाँ कि वो बच्चे को मारा क्यों गया? क्या पहले भी बच्चे को घर में डांटती, डपटती, मारती, पीटती थी? नहीं कभी नहीं ऐसी हुई। हाँ, प्यार करती थी हाँ बच्चे? प्यार करती थी। आप दोनों सही रहते थे आपस हाँ में? जी। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता नहीं था? कभी भी नहीं है। तो क्या वो ज़हनी तौर पे कोई बीमार थी या कोई ऐसा नहीं मामला? कोई बीमार बमूर नहीं हैगी। हाँ, बस एक दिन बदलने लग गया पता ही नहीं लगा। सही है। तो वो बच्चा जब आप लोगों को मिला तो कैसे पहचाना कि ये हमारा ही बेचा बच्चा है, कि या उस लड़के ने बताया? नहीं उस लड़के ने जाके जिथे निशानदेही कर दी? हाँ उत्थे फिर जाके उन्हें फिर लभ्या हैगा हाँ। ते उत्थे फिर तो पुलिस बताया उसने कि किस चीज़ के साथ उसको कत्ल किया? उसने बताया था भी मैं ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ अच्छा। ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੁੱਚੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। जला देता। तो वो लेके कैसे गया घर से? वो बाहर से ही लेके गया था हो सकਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਆ ਉਹ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। सही है। तो पुलिस वालों की बड़ी वैसे बात है कि उन्होंने ये अंधा कत्ल ट्रेस किया कि वो तो किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता कि माँ ऐसा काम कर सकती नहीं है। पुलिस वालों ने तो मेरे साथ पूरा मेरा साथ दिया है। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ ਜੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਾ। हाँ। हाँ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ। हाँ। रावण सिटी थाना एसएचओ साहब और तफ्तीशी साहब और उसका अमला उसने मेरी बहुत हिफाजत की थी। नहीं, तो अपनी बीवी से थाने में बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई, उससे पूछा नहीं कि मेरे नाल जुल्म क्यों किया, बल्कि उन्हें अपने आप नाल ही किया है ना? हाँ जी अपने आप नाल ही कीता है। हाँ। जी मैंने नहीं हाले पूछा मुलाकात ही नहीं की। मुलाकात ही नहीं की। नहीं की। तो आपके अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट कैसी थी? बेटों के साथ ज़ाहिर है बड़ा प्यार होता है, बाप के लिए तो वो सारा कुछ बेटा ही होता है ना? जी तो कैसी अटैचमेंट थी बच्चे के साथ? बहुत अच्छी थी। हाँ। हाँ मेरे बगैर वो रहता ही नहीं था। तो कितनी एज थी उस बच्चे की? उसकी एज की थी 1.5 साल। पापा पापा कहता ही होगा? नहीं हाले बोलता था उंज क्या कोशिश करता था बोलने हाँ की? बोलने की कोशिश करता था। हाँ। ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰੇਡਰ ਸੀ। लेटता था। ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ठीक है। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੀ। हाँ, हल्ले मतलब आपने उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाना था हाँ अभी? चलना सिखाया। सिखाना था तो, लेकिन चलने सिखाने से पहले ही जालिमों ने वो छीन लिया। हाँ जी तो अभी कमी महसूस होती है घर में जब आप आते हैं तो देखते बहुत हैं? परेशान हाँ। हाँ कमी ऐसी मैं यही है मेरा वजीर आला से पैगाम है जैसी सजा मेरे बेटे को दी है उस दोनों को मुलजिमों को इस तो भी कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ। उसको भी एक ऐसे ही जलाया जाए। अच्छा। हाँ ये कभी आप ज़ाहिर है घर में रहते थे, एक घर में रहना, एक कमरे में रहना, तो कभी बीवी पे कभी शक खुद हुआ था कि कोई ऐसा ऐसा मालूम है, या उसने शक होने नहीं दिया? शक होना ही नहीं दिया। हाँ, कभी भी किसी तरह? नहीं। मोबाइल था उसके पास? हाँ जी हाँ। मोबाइल है। तो अभी अगर वो औरत आपकी बात सुनती है या पुलिस वाले उसे दिखाते हैं तो उस अपनी बीवी को क्या कहना चाहोगे इस वक्त, इसे अपने इतने गमज़दा दिल के साथ, इतनी परेशानी के आलम में, जिसने आपकी दुनिया ही खुद की अपनी भी और तुम्हारी दुनिया भी उजाड़ के रखी, हाँ जी क्या पैगाम देते हो बीवी को? पैगाम यही देंगे भी ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं, आपके सामने अगर आपकी बीवी आती है हाँ जी तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? उसका गिरेबान पकड़ के क्या कहना क्या चाहोगे? क्या अंदर दिल के अंदर क्या बात छुपी है? क्या उसको तो मारना चाहिए। हाँ। मेरा तो दिल करता है उसको मेरे सामने आवे ना तो मैं उसको आप ही कत्ल कर दूँ। तो बीवी थी आपकी, कुछ सवाल नहीं करना चाहोगे उससे? नहीं कोई मैं उनके नाल गलबात नहीं करना चाहता। हाँ, नहीं कुछ पूछना तो चाहोगे ना कि मैं केड़ा तेरा बुरा कीता सी, क्यों मेरी दुनिया उजाड़ दी? नहीं मैं उसके साथ कोई बात नहीं करता।
नाज़रीन सुनिए, आपने एक गमज़दा बाप की जो स्टोरी है वो आपके सामने रखी है, और हमारा भी मकसद ये होता है कि जो मुआशरे की बदअनवानियाँ हैं उनको सामने लाकर और आपको दिखाया जाए। ये बात सोचना बहुत दूर की बात है, बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। करना तो एक अलग बात है कि एक सगी ही माँ अपने बेटे को किसी आशना के साथ मिल के उसे अगवा कराए, अगवा कराने के बाद उसका कत्ल कराए, फिर उसको ज़िंदा जला दे। अगर किसी बेटे को कोई कोयला भी हल्की सी आंच भी आती है तो माँ तड़प जाती है, माँ का कलेजा फट जाता है कि मेरे बेटे को क्या हुआ। बेटों के लिए जान देती हुई बहुत सी ऐसी माएँ देखी हैं, मगर बेटे की जान लेना सिर्फ अपनी हवस के लिए, अपने आशना के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने मुआशरे के लिए, ये अपनी नोयत का पहला ऐसा केस जो मेरी हिस्ट्री में सामने आया है वो ये केस है। ये मेरे भाई बड़े परेशान हालत में, जिनकी लूट गई, और दुनिया लूटने वाला कोई और नहीं, इनकी अपनी ही बीवी है। और जो पुलिस को मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वाकई में अगर अदारे अपना काम करने पे आएँ तो वह ऐसा भी करते हैं, क्योंकि माँ के ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, शक भी नहीं जाता कि एक माँ भी ऐसा कर सकती है। मगर पुलिस को यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो भी इनको इलाका लगता है, जो थाना लगता है, उस पुलिस को कि उन्होंने इनके जो मुलजमान हैं उनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद बच्चे की जो नाश है वो भी बरामद कर ली। अब जो दोनों मुलजमान हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। यूं ही इस केस के बारे में नई अपडेट आएगी, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप और हम सब कल आने के बाद।